Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Once again, it is time for us to rejoice in the Lord as we study the Word. एक बार फिर से हमारे लिए समय है कि हम प्रभु में आनंदित हो जैसे हम वचन को देखेंगे। Friends, we have been regularly meditating on the book of Revelation in a systematic way. मित्रों, हम एक बड़े लंबे समय से बड़ी क्रमवार रीति से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। And today is the 79th episode of our series. और आज हमारी सीरीज का 79 एपिसोड है। And today we will be continuing with the last episode that we did. और आज हम पिछले एपिसोड से आगे देखेंगे। In chapter 21 of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वें अध्याय से John says, I saw a new heaven and a new earth. यूहन्ना कहता है कि उसने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। And the first earth passed away, and there was no sea. और पहली पृथ्वी जाती रही थी और कोई समुद्र भी ना रहा। So there was a total change in the existence of the heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी के मौजूद होने पर बिल्कुल बदलाव हो चुका था। The old goes away and the new comes in. पुराना जा चुका था और नया आ गया था। This never come in the imagination of man. और ये मनुष्य की समझ में कभी आ ही नहीं सकता था। But this is the divine and glorious plan of God for each one of us. लेकिन ये परमेश्वर का अद्भुत और महिमान्वित योजना है जो उसने हमारे लिए रखी। Needless to say that when God created everything, He said everything was beautiful. और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की उसने कहा सब कुछ सुंदर है। But now He says, I'll change everything and make everything afresh and anew. लेकिन अब वो ऐसा कहता है कि मैं हर एक चीज को बदल दूंगा और सब कुछ नया कर दूंगा। So the old goes away and the new comes in. तो पुराना जाता है और नया आ जाता है। Nothing of the old is kept, कुछ भी पुराने का नहीं रहा, but everything is new. लेकिन सब कुछ नया हो गया। And when He talks about the new, और जब वो नए के बारे में बात करता then He है, talks about a city, the Jerusalem, फिर वो एक शहर के बारे में बात करता है जो कि है यरूशलेम, and it's called the New Jerusalem. और उसे हम नया यरूशलेम कहते हैं। And it is neither in the old one nor the new one. तो ये ना ही पुराने आकाश और पृथ्वी में है, ना ही नई आकाश और पृथ्वी में। After seeing the new heaven and earth, he sees again a new Jerusalem coming from upwards or from the heavens. और नए आकाश नई पृथ्वी को देखने के बाद वो नए यरूशलेम को देखता है जो कहीं ऊपर से नीचे की ओर आता है। And she is prepared as a bride adorned for her husband. और वो ऐसे तैयार की गई है जैसे कोई पति के लिए श्रृंगार किए हुए होता है। So Jesus is the bridegroom. The New Jerusalem also prepares for the bridegroom, and the church also prepares for the bridegroom. तो यीशु दुल्हा है और वो नया यरूशलेम और कलीसिया दोनों मिलकर दुल्हन जैसे तैयार होते हैं। So something from heaven is preparing to meet Jesus, and something from the earth is preparing to meet Jesus. तो कुछ स्वर्ग का और कुछ पृथ्वी का मिलकर यीशु से मिलने की तैयारी करते हैं। Because in Ephesians he says that God has a plan और इफिसियों में वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर के पास एक योजना that है in the fulfillment of time everything in heaven and earth will be gathered together. कि समयों के पूरे होने पर सब कुछ जो आकाश में और पृथ्वी में वो एक कर दिया जाएगा। So the New Jerusalem from heaven and the church from this earth is gathered together. तो नया यरूशलेम जो है स्वर्ग से और कलीसिया पृथ्वी से इकट्ठा कर दी जाती है। And then he says, I heard a voice, and he says, no more sorrow, no more pain. और फिर वो ऐसा कहते हैं कि उसने एक शब्द को सुना कि अब कोई पीड़ा नहीं रहेगी और ना कोई विलाप होगा। And God is staying with man, his tabernacle is with men. और परमेश्वर मनुष्य के साथ डेरा करेगा And he shall dwell with them. और वो उनके साथ रहेगा। And they shall be called his people, and God shall be called their God. और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे। So this is an establishment which is very, very godly. तो ये जो परमेश्वर ने निर्माण किया है ये बहुत ही अद्भुत है और स्वर्गीय है, Where God is very much present over there with his church. जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी उसकी कलीसिया के बीच में है। See, we have already learned from the Bible that nobody can live if he sees God with his eyes. देखिए, हमने बाइबल में ऐसा पढ़ा है कि यदि कोई परमेश्वर को देख लेता है अपनी आंखों से तो वो जीवित नहीं रह पाता। But Jesus came down when the glory of heaven came down upon this earth. लेकिन जब स्वर्ग की महिमा नीचे आई तो यीशु भी उसके साथ आया। But then man was glorified so that he could see God in his throne and not be killed. और फिर मनुष्य जो था उसकी महिमा बढ़ गई ताकि वो परमेश्वर को उसके सिंहासन पर देख पाए और मरे नहीं।
So we will be enjoying the presence of the Lord forever and ever. तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को सदैव के लिए वहां पर महसूस करेंगे। So initially God blessed this earth through Jesus. तो शुरुआत में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को यीशु के द्वारा आशीष दी। Then he blessed the heavens with the New Jerusalem. फिर वो स्वर्ग को नए यरूशलेम के द्वारा आशीष देगा। And then he brought the New Jerusalem and church together so that we could dwell in the presence of the Lord. फिर वो कलीसिया और नए यरूशलेम को इकट्ठा कर देगा ताकि हम परमेश्वर के साथ सदा सदैव रहें। Now the verse 4 says that Revelation chapter 21 and verse 4. प्रकाशित वाक्य 21 का चौथे वचन में ऐसा लिखा है, There will be a very important impact of this event in the life of humanity. और मनुष्य के जीवन में इन सभी घटनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। We will be in an altogether different environment. हम एक अलग ही वातावरण में चले जाएंगे। There will be no sorrow, no death, no pain, nothing of that kind. और कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई शोक ना रहेगा, कोई विलाप नहीं रहेगा। Today we consider all these things as the integral part of our life. और आज के समय में इन सभी बातों को हम जीवन के अंग मानते हैं। The tragedy of humanity is that we are full of sorrows and short-lived. और मनुष्य के जीवन की विडंबना ऐसी है कि हम दुख से भरे और हमारे दिन जो है वो बहुत कम है। Both these problems will be solved when we go into the presence of और God. ये सारी समस्या का सुलझ जाएंगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। And he says that for the former things have passed away. और वो ऐसा कहते हैं कि पिछली बातें जाती रही। So whatever we are living upon this earth are the former things. तो जो कुछ भी हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और कर रहे हैं वो पहले की बातें हैं। So when God is there, God makes things in such a way that whatever we experience upon this earth are gone by things. और परमेश्वर की जब मौजूदगी होती है तो वो कुछ ऐसा महसूस कराते हैं कि जो कुछ भी पृथ्वी की बातें रहती है वो चली जाती है। Nothing will be retained in the heavens. स्वर्ग में कुछ भी पृथ्वी की बात की मौजूदगी नहीं। You will not be able to remember any sorrow, any pain, any death of this world. आप स्वर्ग में कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी मृत्यु को याद नहीं रख पाएंगे। Because he makes everything new. क्योंकि वो हर एक बात को नया कर देगा। So when he makes everything new, he makes you also new. तो जब वो हर एक बात को नया कर देगा तो वो आपको भी नया कर देगा। And he will renew in you in such a way that nothing sorrowful, nothing painful will be in your mind or in your subconscious even. तो वो आपको ऐसा नया कर देगा कि कुछ भी दुख की बातें, कुछ भी शोक विलाप आपके जीवन में या आपके मन में रहेगी भी नहीं। This is what he means when he says, I make everything new. और ये वो कहना चाहता है जब वो कहता है कि मैं हर एक बात को नया कर देता See, हूँ। we are so attached to the creation and to the sorrows and to death that we take it as a part of our life. देखिए हम सृष्टि से इतने जुड़े हुए हैं, मृत्यु से इतने जुड़े हुए और दुख से भी इतने जुड़े हुए कि हम हर एक चीज को जीवन का अंग मान लेते हैं। Even the word of God says in Hebrews, it is decided for a man to die and then judgment. और इब्रानियों की पुस्तक में भी ऐसा लिखा गया कि मनुष्य की मृत्यु का होना आवश्यक है और फिर ही न्याय होगा। So we are tied to death in a way. तो हम मृत्यु से बंधे हुए हैं एक तरह से। But God says there will be nothing like death over there. लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि वहां पर मृत्यु जैसा कुछ नहीं होगा। So we who look here and there in this creation, we see that many things are permanent. तो हम जो इस सृष्टि में इधर-उधर देखते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत सी बातें जो है वो परमानेंट है। At times our consciousness says that this earth is permanent, the sky is permanent. और कई बार हमारा मन जो है हमसे ऐसा कहता है कि आकाश और पृथ्वी ये सब भी हमेशा के लिए मौजूद We say है। that the sun and moon are permanent. हम कहते हैं कि जो सूरज और चांद है वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगे। We say that change is a rule of this world. हम कहते हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। But there are certain things which are not going to change. लेकिन हम कहते हैं कि कुछ बातों का परिवर्तन नहीं होगा। Unless the change of God comes and new work of God comes, we cannot enter the presence of the Lord. और जब तक परमेश्वर की ओर से बदलाव नहीं होगा और नई बातें नहीं होगी, हम परमेश्वर की मौजूदगी में नहीं जा सकते। And He handles us in such a glorious way that everything is wiped off, even if we don't imagine it happens. और वो हमें इस रीति से हैंडल करता है कि हर एक बातें जो है वो मिट जाती है और हम उसे सोच भी नहीं पाते। So let's meditate upon how He makes new and what He makes new. तो आइए हम इस बात पर मनन करेंगे कैसे वो चीजों को नया करता है और चीजें नई कैसी होंगी। And this is verse 5 of Revelation 21. ये 21वें अध्याय का 5वां वचन है। Then He who sat on the throne said, Behold, I make all things new.
जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। And he said to me, write, for these words are true and faithful. फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। Now this is a very deep word from the Lord. देखिए, परमेश्वर की ओर से बहुत ही गहराई का वचन है। And God declares from his throne. और परमेश्वर अपने सिंहासन से इस बात की घोषणा करता है। And while sitting on the throne, he says, और सिंहासन पर बैठे हुए ही वो यह कहता है behold, I make all things new. कि वो हर एक बात को नया कर देगा। So what things are made new? तो किन बातों को नया करेगा? Everything except man is made new. सब कुछ मनुष्य को छोड़कर नया हो जाएगा। We will also be renewed in a way because we will be having a different body. और हम भी एक तरह से बदल जाएंगे क्योंकि हमारा शरीर जो होगा वो अलग होगा। But we are eternal beings in the Lord, so God will keep us living and we will have our sustenance all till we go to heaven. और हम जो है हम अनंत के लिए सृजेगा, इसलिए परमेश्वर जो है हमें बना के रखेगा जब तक कि हम स्वर्ग में नहीं चले जाते। See, the glorious thing is that all things will pass away, but we will be made fit to go into the new. और सबसे महिमान्वित बात ये कि हर एक बातें बीत जाएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा बनाएगा कि हम वो नई बातों को देख सकें। Because Paul says in 1 Corinthians 15:50 onwards, flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. क्योंकि पहले कुरिन्थियों की 15वें अध्याय के 50वें वचन में पौलुस ऐसा कहता है कि मांस और लहू से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर So सकते। you will be free of flesh and blood and you will be in a new body before God. तो आप मांस और लहू से अलग कर दिए जाएंगे और आपको एक नया शरीर होगा जब आप परमेश्वर के राज्य So में। God says, I make everything new. परमेश्वर कहता है मैं हर एक बात को नया कर देता हूँ। And then when he says that I make everything new, he says, John, you have to write this. और जब वो कहता है कि मैं हर एक बात को नया कर दूंगा, तो वो यूहन्ना से कहता है कि तुम्हें इसे लिखना होगा। We understand that John is writing each and everything because he is instructed to write whatever he sees. हम इस बात को समझ सकते हैं, यूहन्ना हर एक बात को लिख रहा है क्योंकि उससे ऐसा कहा गया है कि वो लिखे। But yet he is reminded again that whatever God has spoken at this moment should be definitely written. लेकिन उसे ये बात को फिर से कहा गया है कि जो कुछ परमेश्वर कहता है उस क्षण में उसे वो जाहिर रूप से लिख ले। Because God and his words are true and faithful. क्योंकि परमेश्वर और उसके वचन सत्य है और विश्वास योग्य है। Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away unfulfilled. यीशु कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन, मेरे मुख से निकला वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। So man in his total being is not that sound and established as the word of God is. तो मनुष्य जो है अपने सोच विचार में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सही स्पष्ट नहीं है। And the Lord says that I am going to shake the heaven and earth once again. और परमेश्वर कहता है कि मैं एक बार आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। And this is a prophecy even in the Old Testament. और ये पुराने नियम की भविष्यवाणी है। If you read the book of Haggai, chapter 2 and verse 6, और यदि आप हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 6वां वचन पढ़ेंगे, there the prophet says in the leading of the Lord, और वहाँ पर भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई में ऐसा कहता है। please read in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। He says, I'm going to shake everything and it is a little while that I'm going to do this. वो कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में हर एक बात को कंपित कर दूंगा। And this is again affirmed in the book of Hebrews in the New Testament. और इस बात को वापस से कहा गया है इब्रानियों की पुस्तक में, जो कि नए नियम में पाई जाती है। And then you find it in the 12th chapter and the last part of it. और इसे आप 12वें अध्याय के 27वें वचन में, 26 और 27वें वचन Chapter में 12 verse 26 and 27, again the prophecy of Haggai is repeated here. और यहाँ पर हग्गे नबी की भविष्यवाणी को फिर से दोहराया गया है इब्रानियों के 12वें अध्याय के 26 और 27वें वचन में। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी,
ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। So anything and everything on this world will be shaken, and because it is temporary, it will be shaken. और क्योंकि हर एक बात जो पृथ्वी पर पाई जाती है उसको हिलाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़े ही समय के लिए पाई जाती है। And the writer in Hebrew says it will be shaken because it is temporary. और लिखने वाला जो ऐसा कहता है कि वो वस्तुएं इसलिए हिलाई जाएंगी क्योंकि वो थोड़े समय But के लिए, whatever is permanent cannot be shaken. लेकिन जो अटल है वो कभी हिलाया नहीं जा सकता। And God's word and His works are established. और परमेश्वर के वचन और उसके कामों का निर्माण कर दिया गया है। So while John is writing whatever he is seeing over there, तो जब यूहन्ना जो देख रहा था उसको लिखता है, see the language that he uses in verse 4, the last part. For former things have passed away. और कैसी भाषा का वो इस्तेमाल करता है 21वें अध्याय के 4 वचन के अंतिम भाग में कि पहली बातें जाती रही। Now in verse 6 again he says, and he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega. और फिर 6वें वचन में वो ऐसा लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। So all these things are done. तो ये सभी बातें पूरी हो गई। So John could ask, what I'm seeing is something beautiful. John could say that. और यूहन्ना ऐसा कह सकता था कि जो मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत सुंदर है, But I do not know when it will happen. लेकिन मुझे नहीं पता ये कब होगा। I'm seeing a vision of the Lord, but I do not know whether it will happen or not. Well, when will everything be shaken and when everything will be accomplished? Could be a question in his और mind. यूहन्ना अपने मन में सवाल पूछ सकता था कि मैं जो बातें देख रहा हूँ वो अच्छी है, सुंदर है, अद्भुत है, लेकिन वो कब होगा, कब वस्तुएं हिलाई जाएंगी, कब यीशु आएगा। Now here he says in verse 6 that it is done. और 6वें वचन में से कहता है कि ये बातें पूरी हो गई। So John has to communicate to us that whatever God is saying as though it is done. और यूहन्ना हमें इस बात को बता रहा है कि जो कुछ भी बातें परमेश्वर ने कही है वो ऐसी कही है जैसे वो पूरी हो गई। So you don't wait for time for things to be fulfilled. तो आप समय और कालों का समय नहीं देखते हैं कि चीजें पूरी हो, But it is already done. लेकिन वो पूरी हो चुकी है। Time and again I have referred one prophecy from chapter 13 of the book of Revelation. और बार-बार मैंने आपको एक भविष्यवाणी दोहराई है प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय से। And there he says that the sacrifice of Jesus is already accomplished before the beginning of this world. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु का जो सैक्रिफाइस है वो सृष्टि की रचना, जगत की उत्पत्ति से पहले हो गई। This is 13 and verse 8. और ये 13वें अध्याय का 8वां वचन है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। So when is Jesus crucified? तो यीशु का क्रूस पर कब चढ़ना हुआ? You cannot mark him in some time in the history. तो आप उसे इतिहास में कोई समय में मार्क नहीं कर सकते। He is already crucified and resurrected before the world began. और वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्रूस पर मार डाला गया और जी उठा है। Now it is very difficult for us to understand now. और ये हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। So you cannot defeat any of God's purposes, and whatever He says is as though it is done. तो आप परमेश्वर की कोई भी योजना को हरा नहीं सकते, और जो कुछ भी कहता है वो ऐसा कहता है कि जैसे वो पूरा होगा। That's why this is a study that shakes us. इसलिए ये ऐसा मनन है जो हमें हिला देता है। My dear brothers and sisters, when you thank and praise God and when you worship Him, you consider everything that He has spoken as done. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप उस मनन को पढ़ते, जब आप वचनों को पढ़ते हैं, जो कुछ भी लिखा है आप उसे ऐसे माने जैसे वो पूरा हो चुका है। As John is in a situation where he thinks things happening, but God says it is done. और यूहन्ना ऐसी परिस्थिति में जहाँ वो सोचते हैं कि चीजें हो रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हो चुकी है। Similarly, every believer is in a situation when he thinks, when will this happen? And God says, beta, it is done. और विश्वासी भी ऐसी ही परिस्थिति में जब वो सोचते हैं कि ये बातें कब होगी, लेकिन परमेश्वर कह देता है ये सब तो हो चुकी है। So we have to understand that everything that is in God is accomplished. और हमें इस बात को समझना है कि जो कुछ भी प्रभु में पाई जाती है, हर एक बात पूरी हो चुकी है। Why does he say so? वो ऐसा क्यों कहता है? He gives a reason also with वो it. हमें इसका कारण भी बताता He है। says, I am the Alpha and the Omega. वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। This is in verse 6. ये 6वें वचन में पाया जाता He है। says, everything is done because I am the Alpha and the Omega. वो ऐसा कहता है कि हर एक बातें हो चुकी है क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। The beginning and the end, I will give of the foundation of the water of life freely to him who thirsts. आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत-मेत पिलाऊंगा।
Now he says that I have something to give to one who is thirsty of the Lord. और वह ऐसा कहता है कि मेरे पास कुछ है किसी प्यासे व्यक्ति को देने के लिए। Now listen to me carefully. Everybody who is a born again Christian is in the thirst of knowing and experiencing that eternity. और मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि हर एक जो नया जन्मा विश्वासी है वो प्यासा है और परमेश्वर को खोजता रहता है ताकि वो उस अनंत को देख पाए। When will I go and be with the Lord? मैं कब परमेश्वर के पास जाऊंगा और उससे मिलूंगा। This is the call of the psalmist also when he says, when will I go and be with the Lord? और ये भजनकार भी ऐसा कहता है, सोचता है कि मैं प्रभु से कब मिलूंगा, कब उसके पास जाऊंगा। And there are so many people who love the coming back of the Lord in their lives. और बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं कि परमेश्वर दोबारा उनके जीवन में लौटे। And the return of Jesus is much cherished by the people who love the Lord. और जो कुछ भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो इस बात की प्रतीति करते हैं कि प्रभु वापस कब आएगा। So who is a thirsty person? तो प्यासा कौन है? Who longs and thirsts for all these things to be accomplished in Christ. और जो उन सभी बातों की प्रतीति करते हैं और लालसा करते हैं कि ये सब बातें कब पूरी हों। My dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। You might be a believer, but you might not be thirsty of all the things that are heavenly. आप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक बात की लालसा करें जो स्वर्गीय है। Anybody who is thirsty will always long for the Lord. जो कोई भी प्यासा है वो हमेशा परमेश्वर की ओर लालसा रखेगा। That's why Jesus says, and the Bible says that we are given a new birth with a living hope. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, यीशु भी कहता है कि हमें एक नए जन्म की आशा दी गई है। And blessed are those who thirst because they will be quenched. और वो लोग आशीषित हैं जो लोग प्यासे हैं क्योंकि उनकी प्यास बुझाई जाएगी। And in his ministry, Jesus said, standing before the temple, he said, और यीशु की सेवकाई में मंदिर के सामने खड़े होकर उसने ऐसा कहा, anybody who thirsts, let him come to me and I'll give him the water of life. और जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास है क्योंकि मैं उसे जीवन का जल दूंगा। Now the revelation that comes to us is this, that it's not just to be surprised with whatever is done for us, और हमारे लिए प्रकाशन ये आता है कि हमें हर एक बात से सिर्फ अचंभा नहीं करना है, but we should create hunger and thirst for the Lord, which he says, I will quench if you live in the thirst. लेकिन हमें भूखे और प्यासे रहना है परमेश्वर के सामने क्योंकि वो हमारी प्यास को बुझा सकता है। And in faith you can go to that destination where you rejoice as though living in heaven. और विश्वास में रहकर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जब आप आनंदित हो जाएंगे ईश्वर को देखकर। While living upon this earth, you feel that the days that you are living are bygone. पृथ्वी पर रहते हुए आप सोचेंगे कि पृथ्वी के दिन जा चुके हैं। And you have entered into a very glorious phase of your life. और आप अपने जीवन के एक महिमान्वित स्तर पर पहुंच गए। And this is what we should know about the finished work of God. और ये बात हमें समझना है परमेश्वर के पूरे किए हुए काम के बारे में। When Jesus said with a loud voice on the cross, और यीशु ने जब क्रूस पर एक ऊंची आवाज से कहा, he said it is finished. उसने कहा पूरा हुआ। And it is almost impossible for everybody to understand what he meant when he said it is finished. और इस सबके लिए समझना बहुत ही मुश्किल था जब उसने कहा पूरा हुआ। What is finished? क्या पूरा हुआ? So we interpret it as the work of Christ finished for every believer. और हम ऐसे समझते हैं कि यीशु का काम हर एक विश्वासी के लिए पूरा हो गया। But it is also meaning that everything that is heavenly is also finished to happen. लेकिन उसका ये भी अर्थ है कि जो कुछ भी स्वर्गीय है जो होना बाकी था वो हो चुका है। So we should consider and think and thank God because whatever is said in the Bible is as though it is finished. और हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसा लिखा गया जैसे वो पूरा हो चुका है। Hebrews chapter 4 and last part of verse 3 says, और इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 3 वचन का अंतिम भाग, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। Yeah. यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। At the time of creation,
each of his work was accomplished. जगत की उत्पत्ति से पहले उसके सारे काम पूरे हो चुके So you know God as your God because he has accomplished everything. क्योंकि आप अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने हर एक कार्य को पूरा कर दिया है And he has made everything new. और उसने सब कुछ नया कर दिया है And we are born again and we are a new creation in Christ. और हम नए जन्म में हैं और हम नई रचना है प्रभु में। So mind you, what are you for तो a मैं- new creation? Why are you made a new creation? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप नई रचना क्यों हैं? Because you are prepared and geared up for the new that is coming. क्योंकि आप तैयार किए गए हैं और रचे गए हैं उस नए के लिए जो आने वाला है। Otherwise, what is the point creating you anew upon this earth? नहीं तो आपको नया बनाने की क्या आवश्यकता थी? Because God has finished the work of his heaven and heavenlies, क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वर्ग के काम और स्वर्गीय काम को पूरा कर दिया and he has assured every believer to be there. और उसने हर एक विश्वासी को ये बात दिलासा दिला दिया कि वहां पर होगा। It's not that we are going there, that we are important, but it is God who has finished everything that is और important. हम वहां पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया इसलिए हम वहां पर जा पा रहे हैं। That's why he makes everything new. इसलिए वो हर एक बात को नया कर So देता that है। new creation begins in your life तो वो नई रचना आपके जीवन में आरंभ हो जाती है and is accomplished in the new heaven and the new Jerusalem. और नए यरूशलेम में और नए स्वर्ग में भी पूरी हो जाती है। Everybody who is born again हर एक व्यक्ति जो नया जन्मा है is born again for the new Jerusalem. वो नए यरूशलेम के लिए पैदा किया So गया। let's have that hunger and thirst for the new Jerusalem. तो आइए हमें उस नए यरूशलेम के लिए वो भूख और प्यास होनी चाहिए Because God loves the people who thirst for the new Jerusalem. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम रखता है जो नए यरूशलेम के लिए प्यासे हैं And he says that I will quench their thirst. और वो ऐसा कहता है कि मैं उनकी प्यास को बुझा दूंगा। But he also warns something. लेकिन वो एक बात की चेतावनी भी देता है And he says that the people who will not be according to the word of God और वो ऐसा कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहेंगे will not be able to enter into that heaven. वो उस स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। Verse 7 calls us for a victory. और 7वां वचन हमें विजय की ओर बुलाता है। He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. जो जय पाए वही इन वस्तुओं के वारिस होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। So, if you think all these things and these are assured to you, you should rejoice in तो it. यदि आप इन सभी बातों को सोचते हैं और ये बातों का आपके पास दिलासा है तो आपको आनंदित होना चाहिए। But you also should be sure that you have overcome. लेकिन आपको इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए कि आपने हर एक बात को पराजय कर दिया। God has given us a spirit of victory. परमेश्वर ने हमें एक विजय की आत्मा दी। And Jesus, in his letter to the 7 churches in Revelation, says, one who is victorious will be rewarded. और यीशु अपने उन कलीसियाओं के पत्रों में ऐसा लिखते हैं कि जो जय पाया है उससे वो मिलेगा। So we should celebrate the victory of the Lord in our lives. तो हमें परमेश्वर की जय को अपने जीवन में मनाना है। Because unless we are celebrating the victory of the Lord, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में नहीं मनाते, we will not be able to enter into the New Jerusalem. हम नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Because unworthy will never be able to enter. क्योंकि जो परमेश्वर के काबिल नहीं है वो कभी नहीं जा पाएंगे। May the Lord give us grace. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे He has called us for a very heavenly calling. और उसने हमें एक बहुत ही स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया है। And let's long and desire to enter the New Jerusalem. और आइए हम नए यरूशलेम में जाने की लालसा करें और प्रतीति रखें। It is already done. ये पूरा हो चुका है And God has done a renewal in you. और परमेश्वर ने आपके अंदर एक नयापन करा है। You are born again to go to the New Jerusalem. आप नए जन्म में इसलिए हैं कि आप नए यरूशलेम जाएं। And may God bless you to be in New Jerusalem. परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप नए यरूशलेम में पाए जाएं। Thank you and God bless you. थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। We'll see you in the next episode. अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे।